वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट शुजा मोहम्मद खान। Yes, ma'am. Well, thank you very much for having me and inviting me over here. And I am agree to speak on how to conduct the criminal trial and the cross-examination in criminal cases. Of course, I believe there are a number of law students on your platform and young lawyers as well. And I am under a duty and obligation to share the courtroom experiences as a defense counsel and mostly as a trial and cross-examining lawyer. Now, before I begin on how I look at criminal examination, first of all, I would like to introduce myself. This is Shuja Mohammed Khan, and I completed my law from Campus Law Center, University of Delhi. And I practiced in all district courts and high courts of several states. And I dealt most of the criminal cases like POCSO, NDPS, IPC, and matrimonial disputes as well. And I would also a discussion all the concerned. It is a really meticulous profession to sit or a settle on do we need a financially and family background in law. And we can also discuss a few other things like what happened before the trial court. And definitely, I must say, I have spent 2 years of the dedicated practice in the district trial courts and the several high courts in India. So you have a very vast experience. Yes. It seems you are a very experienced lawyer. Not much, but already I have spent 2 years for the dedicated practice in the several trial courts and the high courts as well. That's good to know that, sir. So today we are going to discuss on examination, which is called Pariksha in Hindi, and it's from Evidence Act. So मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज एग्जामिनेशन, या अपन ये कह सकते हैं कि जो परीक्षा जो होती है व्हाट इज दैट? बिल्कुल, I would share a few courtroom experiences as well. And the cross-examination can make or destroy a case. I think it is a keystone to a successful trial because of a dramatic possibilities inherent of the cross-examination. It has become the favorite courtroom device to exploit by the cinema and the television. What actually the cross-examination is, the principle of the cross-examination and what are its type and what are the purpose of the cross-examination. The purpose of the cross-examination is not simply to attack an adversary, but to strengthen your own case. Every party has to write the cross-examine a witness produced by his antagonist. The order to test whether the witness has the knowledge of things that testify, and if is found the witness had a means and ability to ascertain the fact about which the testifies. Then this is the memory, his motive, everything may be scrutinized by the cross-examination. The cross-examination is completely a spine of the criminal jurisprudence. तो मैडम ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है ये एक स्पाइन है किसी भी एक क्रिमिनल ट्रायल की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से डिस्कस करूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें करने के लिए हैं. मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अपन स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक अच्छे से चीजों को क्लियर करते हुए जाएं कि व्हाट इज एग्जामिनेशन टाइप्स एंड द मेन थिंग इज कि व्हाई क्रॉस एग्जामिनेशन इज द बैकबोन ऑफ ट्रायल. तो ये चीज जो है बहुत अच्छे से प्लीज आप एक्सप्लेन करें. हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. एंड मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि वो अपने कमेंट्स, अपने क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. सर जो है रिप्लाई करेंगे सारे क्वेश्चन्स का. Surely I will reply back. डेफिनेटली हमारा जो ये सेशन है ये बहुत ही ज्यादा मतलब यूजफुल होने वाला है न्यू कमर्स लॉयर्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए जो कि लॉ के टच में नहीं है, लॉ के बैकग्राउंड से नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स. हम बहुत स्टार्टिंग से मैं बात करूंगा इसमें, क्योंकि आप अब हम ये लेट्स से आप ये मानो कि कहीं पर भी कोई एक
एक क्राइम कमिट होता है किसी भी कल्प्रिट के थ्रू, ठीक है, वहां पे। तो अब जैसे ही क्राइम वहां पे कमिट हुआ तो पुलिस जो है उसमें प्रोसीडिंग करती है, एफआईआर करती है, अरेस्ट करती है, एंड वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो चीजों को कलेक्ट करते हैं, वो एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो एक कलेक्टिवली उसमें फोटोग्राफ्स हो गए, आपके स्टेटमेंट्स हो गए, आपकी रिकवरीज हो गई, उसमें आपके मेडिकल एविडेंसेस हो गए, उसमें आपका साइट प्लान हो गया, उसमें आपका कॉल डिटेल्स हो गई, उसमें सारा एक कलेक्टिव एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक कंसर्न कोर्ट में जाके एक जो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो जाकर सबमिट करता है। अब उसके एकदम बाद ही वो जो एविडेंस उस आईओ ने, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कलेक्ट किए हैं, अब किसी भी एक डिफेंस लॉयर का सबसे पहला काम ये होता है कि जो एविडेंसेस उसने अपनी चार्जशीट में लगाए हैं उस एविडेंसेस को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। ये एक एडवोकेसी की आर्ट होती है। इस आर्ट को अर्न करने में काफी एक्सपीरियंस, काफी कोर्ट रूम एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एफर्ट की जरूरत होती है। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को सब यही कहना चाहूंगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो एक क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए होता है कि जो टेस्टिमनी किसी भी एक विटनेस ने दी है, कहीं पर भी वो रिटर्न में दी हो या ओरल हो उसका, या उसने कुछ देखा हो ऐसा जो एविडेंस के तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो जो एविडेंस है उसको लगाया है। तो ये जो स्पाइन है, ये क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी एविडेंस को एग्जामिन करने का, तो उसमें सबसे पहला एक चीज ये होती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस. It is one of the principal tests which is the law has devised for the ascertainment of the truth, and it's certainly one of the most efficacious. मतलब ये एक जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, इसको इस जो ट्रुथ होता है उस कहानी का, उस फैक्ट्स का, उन फैक्ट्स को निकालने की कोशिश करता है एक डिफेंस लॉयर थ्रू द क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है इसको सेक्शन 135 ऑफ द इंडियन एविडेंस डील करता है, एंड गिव्स द पावर to the court to the condemn on order in which the witness may be produced. Ultimately मैं एक ही वर्ड में इसको कहना चाहूंगा, the production of the witness before the court. मतलब जो विटनेस है उसको कैसे प्रोड्यूस करेगा कोर्ट रूम में लाके कोई भी आई हो। उसके एकदम बाद फिर मैं आ जाता हूं, द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इज आस्किंग द विटनेस क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिलेवेंट फैक्ट इन द केस एंड रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एज एन एविडेंस। जितने भी उस आईओ ने एविडेंसेस को कलेक्ट किया है वो सारे जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो वो सारी चीजें और जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब रेलेवेंट होने चाहिए उस केस से रिलेटेड, जितनी भी चीजें हैं। And there are a three part of the cross examination witness under section 138 of the Indian Evidence Act state that the witness must be examined in the following order. First इसमें होता है the party that called the first examine him. This process is called the examination chief as mentioned under the section 137 of the Indian Evidence Act. अब ये examination of chief क्या है? ये examination of chief में जो विटनेस है, विटनेस को एलोबोरेट करने के लिए दिया जाता है चीजों को। उसने जो भी देखा है, जो भी उसने सुना है वहां पर, या जो भी एविडेंस को वो लीड कर रहा है वहां पर, उस एविडेंस को उसको वहां पे एलोबोरेट करने का मौका दिया जाता है वहां पे कि आपने क्या देखा है, कैसे देखा है। तो इसको प्रोसिक्यूशन वहां पर अपने थ्रू वहां पर टेस्टिमनी उसकी कराता है, उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं, ठीक है। अब उसके एकदम बाद फिर हम जब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, जैसे ही उसका कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, इफ द अपोजिट पार्टी वांट टू दे कैन टेक ओवर द विटनेस एंड द क्रॉस एग्जामिनेशन हिम अबाउट द प्रीवियस आंसर। वो जो भी अपने उसमें बोलेगा अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में, उसके बाद फिर उसको परखते हैं, परखा जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने जो चीजें बोली हैं वो कितनी क्रेडिबल है, उसकी कितनी वेरिसिटी है, वो कितना ट्रुथ बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें निकल के आ जाती हैं। मतलब जैसे मैं ये कहूं कि the opposite party may ask him any question regarding all the relevant fact and not merely the fact discussed which is during the cross examination in chief. The process had been described in the 137 of the cross examination as well.
Cross examination is also described under section 137 of the Indian Evidence Act. If the party that called the witness sees the need of the examination witness again after cross examination, they may examine the witness one more time. This has been laid down and re-examination in section 137 of Indian Evidence Act. अब इसमें ये होता है, हम किसी भी विटनेस को अगर हम किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं है या कुछ सब्सिक्वेंट अगर कुछ इवेंट्स उस केस में होते हैं या कोई उसमें नेक्स्ट विटनेस आकर कुछ उसमें एक्स्ट्रा बोल देता है, जहां पर जो फर्स्ट वाली टेस्टिमनी थी वहां पर वो सारा कुछ कवर अप नहीं हो पाता है, तो हम उसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल करके उसको री एग्जामिन करते हैं जो सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं। मतलब उतना ही पार्ट हम एग्जामिन कर सकते हैं जो सब्सिक्वेंट इवेंट बाद में क्रिएट हुआ है या बाद में किसी प्रोसिक्यूशन एविडेंस ने आगे कुछ उसमें एक्स्ट्रा बोल दिया है या कुछ उसमें सब्सिक्वेंटली कुछ चीजें हुई है, तो उसके लिए हम उसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल करके री एग्जामिनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों चीजों को मैं ये होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, एंड री एग्जामिनेशन हो गया। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। व्हाट इज द स्क्रिप्चुरल बेसिस ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन? क्या स्क्रिप्चुरल बेसिस होता है उसका, मतलब कैसे इसको करते हैं, इसका क्या स्कोप होता है? द मेथड ऑफ द एलिसिटिंग ट्रूथ बाय द मेथड ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन ओल्ड एज अ ह्यूमन नेचर। The cross-examination is commonly esteemed in the 17 test of an advocate skill. Perhaps it's a demand beyond any other of his duties, the exercise of ingenuities. There is a great difficulty conducting the cross-examination with the credible skill. It is undoubtedly a great intellectual effort. It is the direct conflict of the mind with mind. The demand not merely much knowledge of a human mind. It's a faculties and their modus operandi to be learned only by the reading, reflection, and the observation, but much experience of the man and his motives drive from the intercourse with the various classes and many persons and many humans, all have the practical experience in the art of dealing of the witness, which is worth more than all knowledge, which will be merely assist without no amount to study will sacrifice to accomplish as an advocate. And then the rule for the conduct of the examination, क्या rule क्या होते हैं examination cross examination करने के? तो इसमें सबसे पहला रूल ये होता है कि come to the point as soon as possible। सब इससे पहले भी एक चीज ये होती है कि आप जब कहीं पर भी कोई क्रॉस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने क्रॉस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना शुरू किया है, तो उसमें जो आपका विटनेस है उसको आप स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट जो है आप उसको बहुत कंफर्टेबल कर लें अपने साथ ये कोशिश करें कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, आपके क्वेश्चंस को वो समझ भी पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। अगर वो क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा है तो उसको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के उससे पूछने हैं और उसके साथ जब आपके साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, तो एक स्टेज कंफर्टेबल होने की होती है। फिर आप जो 10 मिनट के बाद आपका जो 5 मिनट का सेशन होगा वो उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, मतलब उसको ये लगने लगेगा कि हाँ भाई मैं अब बहुत ठीक से इनके आंसर कर पा रहा हूँ यहाँ पे और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से ठीक कर पा रहा हूँ। देन उसके बाद आपको एकदम से कम टू द पॉइंट एज सून एज पॉसिबल। आपका जो एक मेन मोटिव है, एक जो किसी भी एक जो क्रॉस एग्जामिनिंग लॉयर होता है उसकी एक डेस्टिनेशन होती है। वो एक ये डेस्टिनेशन होती है कि मुझे कोई भी एक एक्स विटनेस है तो उसकी टेस्टिमनी में उससे क्या चीजें बुलवानी है, मतलब क्या चीजों को मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करना है, क्या उसमें ओमिशंस आ रही हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करनी है मुझे उसमें। ठीक है, तो आप जैसे ही अपने जैसे ही पॉइंट पे आएंगे तो पॉइंट पे आने के बाद आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके वो क्वेश्चंस बहुत प्रिसाइज होने चाहिए और कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा उसको इलेबोरेट करने का मौका नहीं देना है। मोस्टली क्वेश्चंस आपको लीडिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा है। मतलब लेट्स से मैं आपको कोई एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आपको ये नहीं पूछना है कि 9:30 बजे आप कहाँ पर थे। ठीक है, आपको डायरेक्टली उससे ये पूछना है कि आप 9:30 बजे कनॉट प्लेस पर थे या नहीं थे। यस एंड नो में आपका आंसर होना चाहिए। और कभी भी आपको जो क्वेश्चंस है उससे वो क्वेश्चंस कभी भी मैं ये कहूंगा इसमें कि एक किसी भी एक सीरियल वाइज नहीं पूछते हैं, उसको बीच बीच से उठाओ,
मतलब जो कहानी है, अगर आप उसको एकदम सीरियल वाइज आप उसको उठाओगे और सीरियल वाइज आप उसको जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, तो वो इंसिडेंट जो उसने एक कहानी पहले से बना रखी है, तो वो उस कहानी के अंदर घुस जाएगा, और वो घुसने के बाद वो उस आपको फिर वो चीजें को पता करता चला जाएगा। तो किसी भी, ये एक आर्ट होती है। तो आर्ट ये होती है कि आपको अपनी पूरी जो एक चार्जशीट है, जो उसकी स्टेटमेंट है, उसको एकदम वेल प्रिपेयर्ड करके आना है घर से। आपको बहुत सारा डिस्कशन करना है उस पर, बहुत सारी रिसर्च करनी है उस पर, और एक आपको एक डेस्टिनेशन, आपको एक डॉकेट्स बनाने हैं, एक आपको डेस्टिनेशन सेट करनी है उसमें, कि भाई मुझे इस एक्स विटनेस से मुझे क्या अल्टीमेटली चाहता हूं मैं। अगर क्या चीजें मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा तो इसकी जो टेस्टिमनी है वो डिस्क्रेडिट हो जाएगी। तो हमें इन सब चीजों पे काम करना है। एंड सेकंड, इसका सबसे बड़ा एक रूल होता है, डू नॉट आर्ग्यू विद द विटनेस। आपको कभी विटनेस के साथ बहुत आर्ग्यू नहीं करना है, बहुत ज्यादा बहस बहस नहीं करनी है, और हमेशा काम रहना है, और अपने आप को भी फोकस्ड रखना है। और मतलब एक जो एक एक केमिस्ट्री होती है, एक कोर्ट स्टाफ से, जज से, और जो सामने विटनेस बैठा है उससे, वो उस टाइम वो केमिस्ट्री आपकी ठीक रहेगी, आप तभी उस डेस्टिनी को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे जो एक विटनेस होता है उसको थोड़ा काम रख पाना, उसको फोकस रख पाना, अपने आप को फोकस रख पाना। तो यही एक एडवोकेसी की आर्ट होती है। उसके बाद फिर इसका थर्ड सबसे बेहतरीन लॉ ये है कि डू नॉट आस्क द क्वेश्चन अनलेस देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा अगर रीजन उसका नहीं पता है तो आपको नहीं पूछने हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, और क्योंकि अगर आप बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछेंगे तो कभी कभी ये होता है कि जज उसको डिसअलाउ कर देते हैं, और मतलब उसका आपको कोई उसके पीछे एक मोटिव नहीं होता, कोई एक एम या गोल नहीं होता कि मुझे इस आंसर से क्या मिलने वाला है, इस बात का भी पता होना आपको बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ अ विटनेस इज मैनिफेस्टली लेइंग, लीव हिम एंटायरली अलोन एंड कीप काम। और वो थोड़ा डर जाता है या कभी कुछ और थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ऑन द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उसको थोड़ा काम होने देना है, उसके बाद ही वो आपकी चीज़ों को कर पाएगा। और सबसे पहली चीज़ ये होती है किसी भी एक यंग काउंसिल के लिए, या किसी भी एक क्रॉस एग्जामिनिंग काउंसिल के लिए, कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा काम रखे और बहुत ज़्यादा फोकस रखे। और उसकी अल्टीमेटली बहुत एक बड़ी प्रिपरेशन होती है, एक पूरी टीम होती है उसके पीछे। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ये क्रॉस एग्जामिनेशन है, इसको बहुत बड़ा रोल है इसका, क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्योंकि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन आपको अगर बहुत अच्छे से नहीं आता है, एक ये वाली आर्ट अगर आपको नहीं आती है, तो आप कभी डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी क्रिमिनल लॉ में या किसी भी क्रिमिनल मैटर में। तो इसका एक सबसे फिर मैं सेकंड इसका पॉइंट मैं बताऊंगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन इज गेट समथिंग। ठीक है, no matter how small, to help your own case when you cannot get that which help your client, trying to get something to weaken your opponent. But that is got by the different process entirely, the separate the truth of the falsehood, more particularly if the truth told by your opposing witness would be assistant of your case. तो इसमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है हमें। अब इसका फोर्थ पॉइंट आ जाता है ये कि हु कैन क्रॉस एग्जामिन। सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्रॉस एग्जामिनेशन में जब हम आएंगे तो कौन इस क्रॉस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकता है। तो पहली चीज तो ये होती है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ चीफ तो प्रोसिक्यूटर करा देगा। अब उसके बाद हमेशा एडवर्स पार्टी को ये राइट होता है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा। ठीक है, द पार्टी हु हैज राइट टू टेक द पार्ट इन इंक्वायरी ऑफ द ट्रायल कैन क्रॉस एग्जामिन द विटनेस और विटनेसेस। एक बहुत खूबसूरत एक जजमेंट है इसमें, बीएस बालाजी वर्सेस टी गोविंद राजू 168 2484। It was said that where one of the managing director of the firm had borrowed a money on behalf of the firm in the capacity without the consent of the other managing director, the latter being the adverse party has the right to cross-examine the former. तो अब ये होता है कि किसी भी एक कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, उसने एक ने वहां से कुछ मनी को जो है वो बोरो कर लिया। अब बोरो करने के बाद वो जो अदर
डायरेक्टर्स हैं उन्हें पूरा राइट है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। ये एक बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट था इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट का। फिर हम इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो रेंज है सेक्शंस की, वो कौन कौन से रेंज में क्रॉस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जा सकता है। अब सेक्शन 146 टू 150 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इसको डेंड करता है। ये जितने भी आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, लीडिंग क्वेश्चंस हो गए, आपका एग्जामिनेशन ऑफ चीफ हो गया, ठीक है। एंड द लेजिस्लेटर, अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि ये जो 146 से लेके 150 तक जितने भी इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन को मैं जिन्हें एलेबोरेट कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, तो इसमें जो लेजिस्लेशन है उसका क्या एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा, मतलब क्या उसके पीछे उन्होंने सोचा होगा। तो सबसे बड़ी चीज इसमें ये थी, द लेजिस्लेचर हैड ट्राई टू गिव अ वेरी वाइड पावर्स टू द क्रॉस एग्जामिनेशन टू हेल्प हिम फाइंडिंग आउट द ट्रूथ इन ओरल डिपोजिशन लेड आउट बिफोर द कोर्ट। तो अब ये तो क्रिमिनल जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका भी यही स्कोप था, उसका भी यही एक मोटिव था, उन लोगों का भी यही एक पर्पस था कि जो एक ट्रुथ है, जो एक क्रेडिबिलिटी है किसी भी विटनेस की, उस क्रेडिबिलिटी को हम कैसे बाहर ला पाए, ठीक है। तो उसके बाद अब ये जब लेजिस्लेशन ने इस एक्ट को बनाया तो यहाँ पर भी आप देखते हो कि जो डिफेंस काउंसिल होते हैं उन्हें बहुत वास्ट पावर्स होती हैं एक क्रॉस एग्जामिनेशन करने की। और क्रॉस एग्जामिनेशन को ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत एक एक एम्बिट में रहना है, किसी भी एक जो आपके फैक्ट्स हैं केस के उसमें भी नहीं, आप थोड़ा बहुत बाहर तक भी जा सकते हैं। बाहर से जाने के बाद आप मतलब एक अल्टीमेट जो आपकी जर्नी, जो आपकी एक डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन को आप अचीव कर भी पा रहे हैं स्टार्टिंग में, नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको रियलाइज हो जाएगा। फिर एक इसका सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि टू टेस्ट हिज वेरिसिटी। अब उसकी जो वेरिसिटी है उस विटनेस की, उसको उसकी कितनी वेरिसिटी है, जो उसने स्टेटमेंट पहले दिया था, जो स्टेटमेंट उसने फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन में दिया है, वो कितनी वेरिसिटी निकल के आ रही है। कितनी वेरिसिटी का मतलब ये है कि जो उसने चीजें बोली हैं पहले, अपना कोई रिटन स्टेटमेंट दिया है 161 में, उसके बाद फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन हम उसको करते हैं, हालांकि बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, 161 is the different and the examination in chief is different and the examination cross examination is the different, ठीक है। तो अब मेरा जैसे ही पॉइंट हम 161 जो है उसकी एविडेंस की वैल्यू नहीं होती, मतलब 161 के स्टेटमेंट्स की वैल्यू नहीं होती है वो। of course 161 section 161 of the CRPC has no value and no admissibility before the court, and this is the different thing. This is conducted by the police officer and the investigation officer, which is lead the investigation in that particular trial, ठीक है। अब इसमें सेकंड सबसे बड़ी चीज ये होती है, इसका सेकंड पॉइंट होता है टू डिस्कवर हु ही इज एंड हीज पोजीशन इन लाइफ। जो भी विटनेस है वो अपनी किस पोजीशन में है वहां पर, मतलब उसकी डिस्कवरी पूरी निकल के आ जाती है वहां पे कि वो किस पोजीशन में अपनी जो चीजें बता रहा है वो चीजें कॉर्पोरेट हो भी पा रही हैं इसकी उससे, या नहीं हो पा रही है। एंड थर्ड थिंग इसमें आ जाती है टू शेक हिज क्रेडिट बाय द इंजूरिंग हिज करेक्टर। तो उसके करेक्टर को भी हम देख लेते हैं कि भाई क्या है उसमें, सब चीजें आ जाती हैं। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, ओमिशन और कॉन्ट्रडिक्शन में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ओमिशन में कुछ चीजें छूट जाती हैं। ओमिशन को लेकर एक बहुत सेलिब्रेटेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तहसीलदार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ओमिशन और कॉन्ट्रडिक्शन ये होती है, कॉन्ट्रडिक्शन में ये होता है कि उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट है, जो उसने एग्जामिनेशन में चीफ में कहा है, और अपने जो क्रॉस एग्जामिनेशन में कह रहा है, मतलब लेट से आप ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाऊंगा इसको, कि कोई एक्स पर्सन ये कहता है कि मैं जब दिल्ली से चला तो दिल्ली से चलने के बाद मैं अपने लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। वो अपने एग्जामिनेशन में चीफ में कह देता है। अब जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कहता है जब मैं दिल्ली से चला तो मैं राइट में टर्न कर लिया मैंने। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो इसमें ओमिशन ये होती है कि वो कुछ चीजें छूट जाती हैं। अब उसने ओमिशन क्या होती है, ओमिशन ये होती है कि वो ये बोलता है कि जैसे ही मैं दिल्ली से चला, ठीक है, तो उसमें एक थ्रू ये होता है कि मैं बाई कार गया, बाई बस गया, बट उसके बाद मैं राइट मुड़ा या लेफ्ट चला गया, ठीक है। तो ये जो बस है, उसने अगर बस को बोलना छोड़ दिया यहाँ पे तो ये ओमिशन होती है, ठीक है। तो इसमें ये बहुत सेलिब्रेटेड एक जजमेंट था उसका,
इसका सुप्रीम कोर्ट का तहसीलदार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो उसने बहुत प्यारे तरीके से इन सब चीज़ों को, इनकी गाइडलाइंस को सेट किया था। एक पूरी जो डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच का, वो बहुत अच्छे से समझाया था। And the omission of the cross examination, it is a well settled established rule of the evidence that the party should put to each of the opponent witness so much of his case or concern the particular witnesses. If no such questions are put, the courts presume that the witness account has been accepted. If it is not intended to suggest that the witness was not speaking the truth upon the particular point, his attention must first be directed to the fact by the cross examination, so that the witness may have an opportunity of giving an explanation. When a party has declined to avail himself of the opportunity put his essential and the material cases in the cross examination, I think it's must that he believe that the testimony given could not be disputed. This not a technical rule of the evidence, it is a rule of the essential justice. तो ये है मेरा कि व्हाट इज जो विटनेस हॉस्टाइल्स जो होते हैं ये क्या है, एंड व्हाई इन दीज डेज इट्स सो ट्रेंडिंग, एंड इसका क्या इफेक्ट होता है उनकी एविडेंट्री वैल्यूज होती है जो ऑलरेडी जो एविडेंस वो दे चुके हैं एंड बाद में वो हॉस्टाइल होते हैं। सो प्लीज मैम एक क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ क्वेश्चन ये है कि जो विटनेस हॉस्टाइल होते हैं वो क्या है एंड उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उनके केस पे, यानी कोई एविडेंस दे दी है किसी विटनेस पे, ठीक है, और उसके बाद वो हॉस्टाइल हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है इन दीज डेज। सो व्हाट इज दिस, व्हाई इट इज? बिल्कुल बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट। A witness who is in antagonistic to the party calling them and being unwilling to tell the truth may have to ask the leading questions. A hostile witness is also known as an adverse witness or an unfavorable witness. He is a witness at a trial whose testimony on the direct examination is either openly antagonistic or the appears to be contrary of the legal position of the party who called the witness. तो हॉस्टाइल विटनेस का मैडम मैं आपको थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो हॉस्टाइल विटनेस ये होता है कि अपने जो एक प्रोसिक्यूशन एविडेंस होता है, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस उसने दिया है उसको लेकर वो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं करता। वो सपोर्ट नहीं करता है तो उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन एक परमिशन ग्रांट कराता है कोर्ट के थ्रू कि मुझे इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। तो हॉस्टाइल विटनेस को हमेशा प्रोसिक्यूटर ही क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। वो क्रॉस एग्जामिनेशन इस चीज को लेके करता है कि उसका जो प्रीवियस स्टेटमेंट था जो कि चार्जशीट में मेंशन है, अब जब उसको सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो उसको डायरेक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। बट ये राइट हमेशा एक डिफेंस काउंसिल पे होता है एक नॉर्मल टेस्टिमनी में, जब वो हॉस्टाइल नहीं होता। बट जब हॉस्टाइल हो जाता है तो हॉस्टाइल होने के बाद जो है वो उसको प्रोसिक्यूशन वहां पर उसको एग्जामिन करता है और उसको मतलब बहुत सारी चीजें निकलवाने की कोशिश करता है। बट अगर वहां पर जो थोड़ी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आ रही होती है वही कॉन्ट्राडिक्शन उसमें इनएडमिसिबल होती है। अदरवाइज अगर कोई हॉस्टाइल विटनेस भी है तो उसकी जो होल टेस्टिमनी है वो कभी भी डिस्क्रेडिट नहीं होती और वो कभी भी इनएडमिसिबल नहीं होती, वो एडमिसिबल ही रहती है। बट हाँ, जितना पार्ट उसका हॉस्टिलिटी का जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है उस पार्ट को हटा देते हैं हॉस्टाइल विटनेस में। ओके सर, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जो ये ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें लॉयर्स जनरली क्या मिस्टेक करते हैं? वैसे हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं किसी को, बट फिर भी जनरली क्योंकि मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। एंड सेकंड किसी के साथ में ये भी है कि क्या क्या चीजें हैं जो उसको हेल्प आउट करती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स हैं उनको? बिल्कुल मैडम, एक कहीं पर भी अगर कोई आप कहीं पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं और आपने अगर चार्जशीट को सबसे पहले बहुत ध्यान से और बहुत डीपली उन सब चीज़ों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद अगर पॉसिबल हो तो एक साइट विजिट करनी है जहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ है या जिस इंसिडेंट की वो एक विटनेस बात कर रहा है अपनी टेस्टिमनी में, अपने 161 के स्टेटमेंट में,
या अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में बात कर रहा है, ठीक है, तो उस साइट की हमें विजिट करनी है, जाके वहाँ के जो नाइवर्स हैं उन नाइवर्स से जाके बात करनी है हमें, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उन अगर उसमें कोई मिल जाता है तो उसमें एक प्रॉपरली हमें एक डॉकेट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद एक फिर बहुत अच्छी से ठीक ठाक प्रिपरेशन करके जानी है, एक बहुत अच्छी रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद फिर एक प्रॉपरली आपको एक डेस्टिनेशन सेट करनी है उसमें। अब आप इस चीज को अगर ध्यान दे रहे हो तो मैंने डेस्टिनेशन की बहुत बार हर एक चीज में डेस्टिनेशन बोल रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन इस ये जो आपकी एडवोकेसी है एक क्रॉस एग्जामिनेशन में, ये जो आर्ट है, तो इस आर्ट में अगर आपकी एक डेस्टिनेशन नहीं है तो आप कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाल सकते वहां से। क्योंकि जब आपको अपनी डेस्टिनेशन का नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि मुझे किस पॉइंट पे जाके इस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, किस पॉइंट पे जाके मुझे इसको थोड़ा सा परेशान करना है, कहाँ पर इसकी कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होंगी। तो जब तक आप अपनी चार्जशीट को लेके, जब तक आपकी प्रिपरेशन एकदम अवेयर, आप उससे बिल्कुल अवेयर नहीं होंगे, तो आप उस एग्जामिनेशन को सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे। दूसरी इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी कोर्ट में जाते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा विटनेस के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, बहुत काम रहना है वहां पर। और आप जो भी स्टेटमेंट या जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर आपके क्वेश्चंस, आपके डॉक्यूमेंट्स वो एकदम प्रिपेयर्ड होने चाहिए, और उन क्वेश्चंस का ऑलरेडी आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये मैं क्या चाहता हूँ इस पर्टिकुलर विटनेस से। तो अगर आपको ये सब चीजें पता हैं तो फिर आपके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट अब मोस्ट ऑफ द लॉयर्स क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, कहीं कोर्ट में जाके एकदम से पहुंच गए, 161 पढ़ा, उसका एग्जामिनेशन चीफ देखा, उसके बाद फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं वो लोगों ने अपनी डेस्टिनेशन सेट नहीं कर पाते। एक बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम में वो उतना सब कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आपकी अगर डेस्टिनेशन वहां पर सेट नहीं है, आपका एक कोई गोल नहीं है, और वो गोल आपका तभी बन पाएगा जब आप प्रॉपरली आप वहां पर आपकी पूरी प्रिपरेशन होगी, आप हर एक फैक्ट को लेकर वहां पर अवेयर होंगे, तभी आप उसको ठीक से कंडक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको कोई बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं वहां पे। तो ये एक आर्ट ही है मैडम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बट बस सर इतना ही कह सकते हैं। कि क्रॉस एग्जामिनेशन पे बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। वो बुक्स अगर हम्म। हम पढ़ते हैं तो बुक्स आपको कितना हेल्प आउट करती हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में? मैडम इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज। आई थिंक इसमें कोई बुक ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती, आपका एक्सपीरियंस ही आपको क्रॉस एग्जामिनिंग लॉयर बना पाएगा। तो बुक्स में एक थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है वो आप प्रोसीजर पढ़ सकते हो उसमें, कि हम कैसे इसको क्रॉस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर पाएंगे, या हम कैसे इसमें क्या चीजें हमें क्या एसेंशियल्स है वो एक प्रोसेस पता चल जाएगा उसमें, कि कौन से सेक्शन में एक एग्जामिनेशन इन चीफ है, कौन से सेक्शन में हमारे पास लीडिंग क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सेक्शन में हमें जाकर जो एक विटनेस है उसको डिस्क्रेडिट करना है। ये चीज तो हम बुक से सीख सकते हैं। बट ये जो मैं आपको गोल्स बता रहा हूँ, जो एक प्रिपरेशन बता रहा हूँ, जो एक साइड प्लान आपके पास है, जो आप साइट विजिट करेंगे जाके, जहां आप लोगों से मिलेंगे, आप जानेंगे उस चीजों को, आप कितना सोचते हैं उस चीजों के लिए, आपको आपकी प्रेजेंस ऑफ जो प्रेजेंस माइंड ऑफ है वो कितना ठीक है। तो अगर जब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अगर बहुत ज्यादा शार्प नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगी। हालांकि बहुत सारे लोग लिटिगेशन में हैं, वो लोग करते हैं, आप सब लोगों की अपनी अपनी आर्ट है। तो बस यही है इसमें तो। जनरली एक थ्योरी और चलती है, बहुत सारे लॉयर्स जो है सीनियर लॉयर्स जो बताते हैं। वैसे क्रॉस एग्जामिनेशन का स्ट्रेटेजी सबका डिफरेंट डिफरेंट है, बट बहुत लोग एक स्ट्रेटेजी लेते हैं यूज में कि जो विटनेस है उसको अग्रेसिव कर दो, अग्रेसिव मोड पे लेके आ जाओ, आई मीन उसको गुस्सा दिला दो। रीजन बीइंग कि गुस्से में इंसान सच बोलता है। सो ये जो थ्योरी है जनरली जो ट्रायल कोर्ट में लोग यूज करते हैं, ये कितनी हेल्पफुल है ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन? नहीं मैम, इसमें मैं बहुत ज्यादा एग्री नहीं हूँ इन चीजों से। हमें सिर्फ किसी भी एक क्रॉस एग्जामिनेशन करते टाइम हमारा एक यही स्पिरिट रहनी चाहिए कि हमें एक जस्टिस प्रिवेल करना है वहाँ पे। तो एग्जैक्टली। जस्टिस प्रिवेल करने के लिए हमें हम हमारी कोई एक पर्सनल किसी के साथ एक कोई एनिमिटी नहीं होती कि भाई हमें उसके साथ कोई हमारी दुश्मनी है या कुछ है। बस एक उसका एक ही स्कोप होता है, एक ही पर्पस होता है कि वहाँ पे आप जो ट्रुथ है वो कितना निकाल पाते हैं, उसके स्टेटमेंट की कितनी वेरिसिटी है। तो बस आपको उसी नज़रिए से देखना है कि आप जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहे हैं उससे आप कितना ट्रूथ निकाल पाते हैं, कितनी चीज़ें वो आप उससे निकाल पाते हैं, कितनी जो आपकी डेस्टिनी है वो डेस्टिनी निकल कर आ भी रही है, नहीं आ रही है।
तो ये सब चीजें करते हैं। गुस्सा, ये तो ये टेक्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी किसी भी क्रॉस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे से आपने जो है क्रॉस एग्जामिनेशन को एलोबरेट किया है, एग्जामिनेशन को भी अच्छे से आपने एलोबरेट किया और क्रॉस एग्जामिनेशन को बहुत ही वास्ट वे में और बहुत अच्छे से। एंड डेफिनेटली ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर न्यू श्योर। कमर्स के लिए। एंड जो श्योर। मेरा क्वेश्चन है सर, आप कानून गुरुज से जुड़े हैं, तो व्हाट इज आपके क्या व्यूज हैं कानून गुरुज को लेके या इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेके, आप क्या सोचते हैं? कानून गुरुज जो है वो एक मैडम बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है फॉर द एवरी लॉ स्टूडेंट एंड द बडिंग लॉयर who is practicing in the very initial stage. तो मेरा एक यही व्यू है कि ये लोग बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हैं अपने, और काफ़ी एक्सेस इनका बहुत अच्छा है, इनकी टीम बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पर। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच सर आपके वर्ड्स के लिए। एंड आज आपने टाइम स्पेयर किया है अपने बिजी शेड्यूल से, तो थैंक यू सो मच।